Psalm number 8, we will start reading from Psalm number 7 verse 16 to onwards. Psalm number 8 में जाने से पहले भजन संगीता 7 का 16 से पढ़िए. बेबे his mischief written upon his own head, and on his own skull. Violence descending. I will give to the Lord the thanks due to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord. Continuously gone. The Most High. No. Heading. Oh, okay. Majesty is your name. To the choirmaster, according to the Gittith, a psalm of David. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. All of the mount and babies and infants, you have established trade because of your foods, to steal the enemy and the avenger. When I look at your heavens, So this is Gittith. गिटित म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ये है. इसमें भी स्ट्रिंग्स है, गिटार समान ही है बट डिफरेंट शेप. गिटित वहां लिखा है ना, टू द choir master according to the Gittith a psalm of David. So when they used to sing this song hymn, they used to use this instrument. Then, O Lord our God, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens. So it starts with a declaration, a confidence. This psalm is not like the other psalm. It starts with a confidence. So we will read the introduction. Its poetic meditation is on the majesty of God and the dignity of humanity has inspired countless generations. So Psalm 8 stands as one of the most beloved theologically rich hymns in the book of Psalms. So it starts with praising God with confidence. Why? Because he prayed and he understood who God is, and he started praising in Psalm number 7 verse 16 onwards, 17 onwards, and it flowing to Psalm number 8. Psalm number 7 का 17 से लेकर उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया. वो 8 में शुरुआत से ही ऐसे ही है, नहीं है. इसलिए शुरुआत में उन्होंने बोला, ओ लॉर्ड आवर गॉड, हाउ मैजेस्टी इज योर नेम इन ऑल द अर्थ, एक्सक्लेमेशन मार्क. सो इन बिटवीन ही अंडरस्टूड समथिंग. एक्सक्लेमेशन मार्क आया तो मतलब क्या है? आश्चर्य हो गया, अमेजिंग. मतलब प्रार्थना किया, कुछ बातों तो समझ आ गया, तुरंत बोलने लगा परमेश्वर आप कितना महान है. हम भी कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हमको वो मिल गया तो हम भी क्या बोलते हैं, ओ परमेश्वर कितना बड़ा है, महान है करके बोलते हैं ना. सेम काइंड ऑफ फीलिंग. बैकग्राउंड, ऑथर ऑफ कोर्स डेविड, ए साम ऑफ डेविड, सेकंड किंग ऑफ इस्राएल, ट्रेडिशनली क्रेडिटेड विद कंपोजिंग मेनी साम्स. सो and his association with his music and worship is well attested in the Hebrew Bible. 1 Samuel 16 का 23 पढ़िए, 2 Samuel 23 का 1 भी पढ़िए. And we don't have the right accurate evidence of Psalm number 8 also. भजन संगीता 8 का करेक्ट जगह कहाँ है पुराना नियम में पॉइंट आउट करने के लिए नहीं है. There is no exact evidence regarding the background of this psalm. लेकिन it also happened when he was in prayer, when he was persecuted by people, when he got deliverance or when he understood the power of God, then he sang this song. इतना ही हमको समझ आता है. फर्स्ट सामुएल 16 का 23 पढ़िए. And whenever he also expressed the concern that Ahithophel gave was as if one considered the word of God. 23:1, 2 Samuel 23:1. दाऊद के अंतिम वचन ये है, सीओ के पुत्र की यह वाणी है, उस पुरुष की वाणी यह जो उनसे पर खड़ा किया गया.
और याकूब के परमेश्वर का अभिषेक और इस्राएल का मधुर भजन गाने वाला। मे बी कॉन्टेक्स्ट वो होगा या ये होगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है कुछ विषयों के ऊपर उत्तर मिला, इसकी वजह से उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, उनका नाम ऊंचा कर रहा है। देन कमिंग टू, कुछ बोलने के लिए था, इस दाऊद ने लिखने का समय उन्होंने ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ये राग में गीत गाना करके बोलना क्यों है? उनका बचपन से लेकर कहानी में हम ये बात सीखे थे, क्या था? म्यूजिशियन था, ही वाज ए गुड म्यूजिशियन। साउल को जब दुरात्मा कुछ मतलब साउल को कुछ होता था तब उनको शांत करने के लिए जाकर गिटार बजाता, वीणा बजाता था। सो ही वाज बोर्न एज ए म्यूजिशियन आई थिंक। फिर भी कहाँ चले गया? लिटरेरी स्ट्रक्चर 1 and 2 इन्वोकेशन एंड गॉड्स मेजेस्टी। वर्सेस 1 and 2 में परमेश्वर के नाम की मेजेस्टिक, और उनका नाम, उसका हिंदी क्या है मेजेस्टी का? हिंदी बाइबल में है, ओ लॉर्ड आवर गॉड हाउ मेजेस्टिक इज योर नेम। पढ़िए पहला वचन, प्रधान बनाने वाले के लिए पहला वचन पढ़िए। यहोवा हमारे प्रभु तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रत्यामय है। क्या है? प्रत्यामय। मतलब परमेश्वर का नाम को ऊंचा करते हुए शुरू हो रहा है वचन नंबर 1 and 2। मेडिटेशन और ह्यूमैनिटीज प्लेस इन क्रिएशन, वर्सेस 4 onwards, 3 onwards, यू विल सी इस बहुत बड़ा पृथ्वी में हाउ गॉड प्लेस ह्यूमन बीइंग, सारी सृष्टि में इंसान का जगह क्या है। सो मेडिटेशन ऑन ह्यूमैनिटीज प्लेस इन दिस क्रिएशन, इस क्रिएशन में हमारा जगह क्या है, स्थान क्या है करके वहां वचन में बताया गया है। मे बी वहां आउट ऑफ द माउथ ऑफ वो वाला और एक जगह पे आया था ना, नहीं आया, ठीक है। सो इन द सेकंड पार्ट इट्स एक्सप्लेन्स अबाउट द प्लेस ऑफ ह्यूमैनिटी वेयर वन का नहीं, मैं और कुछ भजन संगीता में पढ़ा जैसे लगा मुझे, छोड़ दो। सो इन द सेकंड पार्ट उन्होंने ही अंडरस्टूड व्हाट इज हिज पोजीशन इन दिस क्रिएशन, सो ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग। यू कैन कनेक्ट इट विद जेनेसिस। देन refrain of praise, verse 9. Oh Lord our God, how majestic is your name in all there. So this is not something that connecting as a personal psalm, because it uses the word our. Maybe दाऊद ने कुछ युद्ध में जाने का समय प्रार्थना करके निकला था, तब विजय मिला, तब गाया होगा, समझ रखना, इसलिए यूज द वर्ड आवर। दिस इज नॉट समथिंग पर्सनली, as a jund, as a group, as a community they are singing, or he sang this song. Again here also you can see parallelism, historical and cultural context. This Kamal पढ़िए। Some seem to reflect the worldly view of the ancient Israel, which saw the consumed as the manifestation of the God's creative power. The psalmistic is the marvelous at the night sky, a common experience in the ancient Near East, where the star moon is the evoked away to the wonder, the reflection to the work of your fingers. Must we understand the belief in the personal involved and creator. The psalm also is the engaged with the concept of humanity, human demonies over the creator, closing the creation narrative in Genesis 1 or 2. So the Psalms has a connection with historical evidences, and it speaks about how God created this world
and what is my position in this world. So maybe when it connects with canonical placement and use, after a long prayer and petition, something good happened, then the personal prayer turning into a community worship. मतलब बहुत सारा पर्सनल प्रार्थना पढ़ के हम आते आते अभी मैंने बोला दिस इज नॉट समथिंग पर्सनल, दिस इज समथिंग कम्युनिटी, our God. So there was a personal petition prayer and coming and they got the answer. Now it turns into community worship. कहाँ चलेंगे? Oh, ये तो so it turns into communal worship. समझ आया? So connecting it with the life of David, पर्सनल बातों की वजह से और अलग बातों की वजह से बहुत कमजोर था. He was in distress, anxiety, fear. लेकिन God answered and it benefited not only to him because he was a king. So if God helps him, it also goes to the society, community, where his kingdom belongs to. So now everyone coming together and they are having a communal worship. And what is the central figure in worship? The name of God, the power of God, who is God. समझकर वो लोग क्या कर रहे हैं? आराधना. सो ये इधर भजन संगीत लिखा है, ये वर्स बाय वर्स कमेंट्री है. कमिंग टू literary devices, it also uses inclusio method which means शुरू हुआ एक स्टाइल में, अंत हुआ सेम स्टाइल में. पढ़ के देखना, शुरू हुआ सेम, अंत हुआ सेम, दैट इज inclusio, है ना? शुरू हुआ सेम, अंत हुआ सेम. देन पैरेललिज्म ऑलरेडी मैंने बताया, एक समान दिखाई देता है. इमेजरी, कुछ इमेजरीज क्या है? शीप, ऑक्सन, शील्ड, ये सब बातें. कॉन्ट्रास्ट मतलब हमारे जीवन में जो बातें होता है, जो हुआ, ये सब बातों को लेकर जोड़ते एक्सप्लेन करते लिखा. इसलिए लिखा व्हाट इज माय पोजीशन इन दिस क्रिएशन एंड हु क्रिएटेड मी, हिज नेम इज above all name. That's why शुरू और अंत में एक बात ही बताया. क्या बताया? ओ लॉर्ड, आवर लॉर्ड, हाउ मेजेस्टिक इज योर नेम इन ऑल द अर्थ. वहां एक्सक्लेमेशन मार्क है. Why? Because they understood and they are amazed and they are worshiping God. समझ आया context? And how we can use in theological terms themes, the majesty of God, dignity and humanity of humanity, creation and dominion, Christological reading. When you read this Hebrew chapter 2, 1 Corinthians 15, Ephesians 1 verse 22, it also have some connection. पढ़ के देखिए. अभी नहीं, बाद में. When this psalm was used in Jewish tradition, as a community, when they gain something, when they win from a war, और कोई युद्ध से लड़कर जीत के आएगा, then they used to sing this psalm. Why? Their babies and infants करके एक शब्द को यूज किया. मे बी दैट इज ये मेटाफर फॉर द पीपल ऑफ इजराइल. यही बातें हमने कल भी बोला था, इसलिए मुझे याद आया. बेबीज करके कहाँ पढ़ा था? 2 वर्स. Out of the mouth of babies and infants, you have this. मतलब शाम नंबर 2 का 8 का 2 नहीं, हम अभी 8 ही पढ़ रहे हैं. ऐसा वाला वचन मैंने कहा पढ़ा करके, शायद मैंने इससे ही कल बोला होगा भाई. बिकॉज वहाँ बच्चे लोग करके लिखा है ना, बेबीज एंड इन्फेंट्स यू हैव एस्टैब्लिश्ड स्ट्रेंथ बिकॉज ऑफ योर फोर्स करके, और शायद वो बेबीज और इन्फेंट्स करके इजराइल लोगों को दिखाने के लिए बोला होगा. मतलब वी हैव कमिटेड समथिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू बट इट इज नॉट फ्रॉम द हार्ट, फॉरगिव अस लॉर्ड करके बोलने का तरीका होगा. इस वचन को भजन संगीता इस नया नियम में
मैथ्यू चैप्टर 21 का 16 में यूज किया, इब्रानियों का पत्री 2 का 6, 7, 8, 9 में यूज किया, पहला कोरिन्थियों 15 का 27 में यूज किया, एफिसियों का पत्री 1 का 22 में यूज किया। In liturgical usage, Jewish used to use this psalm when they celebrate, and when they celebrate because of this creation, परमेश्वर का सृष्टि को देखकर आनंद मनाता है, तब भी इस गीत को गाता था, क्योंकि वहां लिखा है इस सृष्टि में हमारा पोजीशन परमेश्वर ने क्या दिया। देन कंटेम्पररी रिलेवेंस, आज का समय में हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव वन सब्जेक्ट इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट। इकोलॉजी करके एक सब्जेक्ट है। सो व्हेन यू स्टडी इकोलॉजी, गॉड इज द डिस्ट्रॉयर एंड गॉड इज द क्रिएटर। उन्होंने सृष्टि की, उन्होंने भी क्या भी किया था, इकोलॉजी। सो व्हेन यू गो थ्रू, इफ यू गो थ्रू एनी हायर स्टडीज और एनवायरनमेंट डे करके एक डे है ना, मनाता है, तब इस वचन संहिता से प्रचार कर सकता है। देन अबाउट ह्यूमन आइडेंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा पहचान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, वचन संहिता में लिखा है, क्योंकि मेरा पोजीशन, मुझे कहाँ परमेश्वर ने रखा, क्यों रखा, क्या करने के लिए रखा। जेनेसिस चैप्टर 2 का 15। देन हाउ वी शुड वर्शिप गॉड व्हेन यू सी ऑल दिस थिंग, एंड व्हेन यू सी योरसेल्फ, हाउ कैन यू वर्शिप गॉड, बिकॉज वेयर इज योर पोजीशन मैटर्स। कंक्लूजन, एनी डाउट? मेरा गला भी बहुत दर्द हो रहा है। 3 लिया ना आज, शायद काफी है। 7, 8 हाँ